వెల్కమ్ టు న్యూస్ ఆర్ నేను శ్వేత. సంగారెడ్డిలో టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఇఫ్తార్ విందును నిర్వహిస్తున్నారు. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని మిలాద్ గ్రౌండ్స్లో ఇఫ్తార్ విందుకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. గత 20 ఏళ్లుగా జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్న ఇఫ్తార్ విందులో భారీ ఎత్తున నియోజకవర్గం ముస్లింలు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ముస్లిం మత పెద్దలతో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఇఫ్తార్ విందులో పండ్ల ప్రదర్శన, షామియానాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. क्या हीरोज पर क्या पहलवान छोड़ दो आप जाओ मैं आप लोग इधर क्या बात करना भी है पैसा लगा लो हमारे हरदिल अजीज साहिब जनाब पीर प्रकाश रेड्डी साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, जो अपना कीमती वक्त निकालकर हर साल इस मैदान पर रोज़े इफ्तार के लिए तशरीफ फरमाते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम रोजेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो दस्तरखान पर तशरीफ फरमाएं। मैं तमाम रोजेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो दस्तरखान पर तशरीफ फरमाएं। मैं मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने कीमती कलिमात से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز و محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور شہر سنگاریڈی کے تمام نوجوان بزرگوں، علماء، حفاظ اور مشائخ اور ہمارے خاص طور پر اس علاقے کے لیڈر پیر پرکاش ریڈی صاحب، ہمارے لیے آج بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے علاقے کی اور نامور شخصیت جو کئی سالوں سے ہمارے اس علاقے میں مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر پورے مسلمانی کردار کو اپنا کر یہ ہماری اور آپ کی سب خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب پرکاش ریڈی صاحب کو اس دنیا کی تمام ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت رحمت نازل فرمائے اور اللہ ان کو بری نظر سے بچائے اور نظر بد سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور قوم کی قیادت اور قوم کی خدمت ایک بہت بڑا نظم ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا انتظام جو ریاست تلنگانہ و آندھرا کا جو سب سے بڑا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے، ایک تاریخی انتظام کیا گیا ہے روزے داروں کے دلوں کی خوشیوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا حضور نے یہ بشارت دی کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس اس وقت سے نہیں بجھے گی اور اسے کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی پلائے گا۔ بہت بڑی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں امت مسلمہ کے لیے اور سارے ان لوگوں کے لیے جو روزے داروں کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خدمت لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، یہ سیاسی خدمت کے علاوہ یہ ہمدردی اور غمخواری لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبتوں کا معاملہ یہ صرف اور صرف ہمارے اس علاقے کے انسان ہر دن عظیم جناب پرکاش ریڈی صاحب کو سمجھ میں آتا ہے، دکھتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، ایسی چاہتیں اور ایسی محبتیں اور ایسی ملنساری کسی اور کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا جو آج ہمارے درمیان میں
जनाब जयप्रकाश रेड्डी साहब के दरमियान हमें और आपको मिल रही है। मैं जनाब हाफिज शफीउद्दीन साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको इनकी जोड़ी बनाकर के अल्लाह सलामत रखे, काबू में रखे और इनको तमाम तरक्की से मालामाल फरमाए। और जितने दोस्त मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ गाँव से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे मौके पर हुजूर ने फरमाया रोजेदार की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। रोजेदार को दो खुशियाँ होती हैं, फरमाया कि एक वो खुशी जब इफ्तार के वक्त रोजेदार इफ्तार करता है, उसके सामने सामान होता है, रोजे का बहुत सारा कीमती सामान होता है, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता उस वक्त वो इफ्तार नहीं करता। दूसरी खुशी फरमाया कि अल्लाह से मुलाकात करने पर इंसान को खुशी होती है। बड़ी खुशियों का मौका है, बड़ी खुशियों के लम्हे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिलन को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए और सबके दिलों में कायम की मोहब्बत को बेदार फरमाए। और आने वाले दिनों में हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस रियासत का आपको बहुत बड़ा मिनिस्टर बनाए और आपको अल्लाह तरक्कियात से मालामाल फरमाए और जो कुछ भी खिदमत आप यहाँ पर कर रहे हैं उसका पूरा पूरा सिया अल्लाह ताला अता फरमाए। ये हमारे दिलों की ख्वाहिश है, लोगों की आरज़ू है। इफ्तार करने वाले, रोजा खोलने वाले जो हजारों की तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, आपकी मोहब्बत में और आपकी चाहत में और आपसे मोहब्बत करने वाले सिलसिले यहाँ पर जमा हुए हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आज 10 रात है, 19वीं शब है और कल आखिरी रोजा है। उसके बाद हम और आप सब मिलकर के ईद मनाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। हमारी दुआ है और आपसे गुजारिश है आप इस ईद के लिए दुआएं करें जो आपकी खिदमत के लिए हमेशा तड़पता है, बिलखता है, फिक्रों में रहता है और लोगों को रोजे रोजे कर उनको खिदमत को और बढ़ाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारी दुआ अल्लाह पर यहाँ के तमाम लीडरों को, खासतौर पर हमारे जयप्रकाश रेड्डी साहब को, जनाब शफी साहब को और जितने भी यहाँ पर तमाम मंडलों से जो यहाँ पर सरपंच जो आए हुए हैं तमाम लोगों को अल्लाह ताला तरक्कियात से मालामाल फरमाए। ऐसे दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इजलास को, हमारे दावत इफ्तार को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। नजरबंद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हजम किधर है वो शक्ल वगैरह लोग खाए थे इधर है आप साथ ये लोग। ये नौजवान जो मेरे भाई हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज नाकाफी हो रहा, बड़े भाई गुलपोशियाँ करना है, आपसे गुजारिश है आप हम सब के लिए अजीज है, सब थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा स्टेज पे मेहमानों के लिए मौका दीजिए। हमारे अखिलियती कायद जनाब हाफिज शेख शफी साहब हमारे मेहमानों का शालपोशी और महरूमा जग्गा रेड्डी साहब को पेश कर रहे हैं और दीगर हमारे मेहमान की भी आप महरूमा वगैरह पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ साहब के फर्जन जनाब भरत साई रेड्डी साहब की भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में जनाब पी जयप्रकाश रेड्डी साहब मौजूद है। मैं उनकी तारीफ करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो तारीफ सुनना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ काम चाहते हैं, पब्लिक की खिदमत चाहते हैं, रोजेदारों को सही तरीके से बगैर किसी तकलीफ के इफ्तार कराना चाहते हैं, लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। जग्गा रेड्डी साहब वोटों की सियासत नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों को जीतने की सियासत करते हैं। जग्गा रेड्डी साहब वोटों के लिए मजबूर होने की सियासत नहीं करते बल्कि लोगों की तकलीफ को कैसे दूर किया जाए जग्गा रेड्डी साहब की हमेशा वही फिक्र रहती है। आज संगारेड्डी में जो भी तरक्की हुई अल्हम्दुलिल्लाह जग्गा रेड्डी साहब की देन है। संगारेड्डी में IIT कॉलेज का आना, गवर्नमेंट उर्दू डिग्री कॉलेज का आना, मीठे पानी का आना, ये तमाम कारनामे अगर मैं इस प्लान में बैठा तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन जग्गा रेड्डी साहब की खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। मेरे भाई जग्गा रेड्डी साहब को सामने खड़ा करके तारीफ करना मेरा मकसद नहीं है। आज कोई इलेक्शन नहीं है, 2 साल 3 साल में इलेक्शन नहीं है जो मैं ठहर कर जग्गा रेड्डी साहब की तारीफ करूं, बल्कि जग्गा रेड्डी साहब के दिल एकदम साफ दिल इंसान, किसी की गीबत को सुनना पसंद नहीं करता, किसी की बुराई सुनना
पसंद नहीं करता, किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करता, वो शख्स का नाम जग्गा रेड्डी साहब है। मेरे भाई, जब गवर्नमेंट इख्तियार आई कांग्रेस, तो टीआरएस वालों को हमारे कई लोग जग्गा रेड्डी साहब के सामने मशवरा करे, अल्लाह वो मेरे को फलाना आदमी परेशान करा, अब वक्त आ गया, अब उसको हम परेशान करें। जग्गा रेड्डी साहब बोले, कभी जहर नहीं गवाना, इंतजाम की सियासत का नाम जग्गा रेड्डी नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाले का नाम जग्गा रेड्डी है, लोगों को परेशान करने वाले का नाम जग्गा रेड्डी नहीं है। अगर कोई हमको तकलीफ दिया तो अल्लाह बहुत बड़ा है, हम दिल से उनको माफ करना चाहिए। कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वोट की सियासत अलग है और कौम और मिल्लत और लोगों की भलाई की सियासत अलग है। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में मिलकर संगारेड्डी की तरफ ही करना है, तेलंगाना की तरफ ही करना है। जो भी मजबूर परेशान लोग हैं, बेघर लोग हैं, उनको कैसे घर दिलाना है, वो जग्गा रेड्डी साहब की फिक्र है। ये तमाम चीजें मैं उनके साथ रहकर गौर कर रहा हूँ, गौर करके ये बात कह रहा हूँ। ये बात कहने से मुझको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने मुझको मेरे लिए बहुत कमा कर रखा है। मैं जग्गा रेड्डी साहब की तारीफ करने का मकसद एक ही है, बेहतरीन इंसान, लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाला इंसान, लोगों के दिलों को तकलीफ को समझने वाला इंसान और बिल्कुल साफ दिल इंसान, किसी को पैसे देकर बोलने वाला नहीं, किसी को मदद करके कहने वाला नहीं, बगैर पब्लिसिटी के लोगों की मदद करता है। हमेशा पब्लिक की खिदमत में उनकी फैमिली रहती है। कभी दशहरा के त्योहार आता है तो ये फैमिली एक बार भी दस्तरखान पर एक साथ बैठकर खाना नहीं खाई, बस हमेशा पब्लिक की फिक्र में लगे भी रहते हैं। हमारे निर्मला मैडम साहिबा, उनके पैर मुस्तकिल दर्द है, लेकिन हमेशा पब्लिक की खिदमत के लिए हमारे पास अवेलेबल है। उनकी लड़की हमेशा पब्लिक के प्रोग्रामों में, पार्टी प्रोग्रामों में अवेलेबल है। ना इनके पास कोई फार्म है, ना इनके पास कोई बिल्डिंग है, ना इनके पास कोई बंजारा हिल्स में आलिशान घर है, बल्कि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब जनाब मुफ्ती जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट रोजेदारों के लिए कुछ अल्फाज कहें। मुसलमान भाइयों, और एक 2 दिन के बाद रमजान की ईद आ रहा है, सबकी मुबारकबाद है। आज का दिन जो आप ये रमजान दिन के रोजा के दिन है, ये पवित्र दिन है। एक महीना तो आप लोग का रोजा रहेंगे। ये रोजा में हर एक साल दुनिया को मालूम है, साल के एक बार मैं मुसलमान भाइयों से मैं रमजान इफ्तार की दावत हर एक साल मैं आपके बीच में करते रहता हूँ। आप लोग प्यार से मेरा दावत को, रमजान दावत को आप लोग स्वीकार करके आना मेरे को बहुत बहुत खुशी की बात है। आज का दिन आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। मौल साहब एक बात एक शब्द बोल लिए, ये गैस में कभी भी यहाँ जो प्रेयर होता है अल्लाह से अपन जो रिक्वेस्ट करते हैं वो दुनिया के लिए अपन करना पड़ता। सब अच्छा या हिंदू या मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन हर एक भी खुश रहना, भाई भाई मिलके रहना, वही मेरा मकसद है। फिर एक बार मैं मेरे मुसलमान भाइयों से मैं अल्लाह से मैं दुआ भी करता हूँ, आप लोग खुश रहना। जो भी मेरे जो गरीब है, जो मेरे से हो सकता है वो बराबर मैं करते रहूंगा। फिर एक बार आप मेरे भाई से फिर एक बार आज का दिन मेरा इफ्तार की दावत की पूरी करके आप लोग यहाँ पे आए, सबको मेरे फिर एक बार मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। तमाम साथी बैठ जाएं। तमाम
तमाम साथियों से गुजारिश है, दुआ हो रही है, बैठ जाएं। रोजेदार जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है दस्तरखान पे बैठ जाएं और जगहों पे अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। इंशाल्लाह दुआ होगी, वक्त कम है, आप अपना बैठ जाएं। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. اے اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے سورج اور چاند کو پیدا کرنے والے اللہ، اے آسمانوں سے بارش نازل کرنے والے مالک، اے ساری کائنات کو روزی دان دینے والے مالک، اے ساری کائنات کو زندگی اور موت دینے والے اللہ. اے اللہ، زندگی اور حیات کے لحاظ میں ہے، عزتوں کا دینے والا تو ہے، اے اللہ ذلتوں کا دینے والا تو ہے. اے اللہ، اس وقت روزہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، میلاد کے اس میدان میں اے اللہ ساری انسانیت جمع ہوئی ہے اور سارے مسلمان روزے کی حالت میں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ، نفرتوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ، دنیا کو قریب سے بدل دے اور دور والوں کو قریب فرما دے. سب کے دلوں میں محبت